Hello everyone. Today we start with the Hindu Marriage Act 1955, which has total 30 sections. Sorry, 30 sections and 6 part here. Okay. This act came into force on the 18th May 1955. Okay. The draft was submitted by Rao Committee on 9th of April 1948. You can remember this. First and foremost part start with the preliminary, which has first, that is preamble. Okay, preamble, we have this act to amend, an act to amend and codify the law relating to the marriage among the Hindus. Section 1 deal with, that is section 1 deal with the short title and extent. Okay, short title, this act may be called as the Hindu Marriage Act 1955 and it extend to whole of India. Application of the act, section 2 deal with the content, that is application of the act. Okay, in which clause 1 states that this act applicable to who are Hindu by religion. Okay, and the second one, which is clause B, which says that this act applicable to any person who is Jain, Buddhist, Sikh by the religion. And the third one said that to any person who domicile in the territory of India, but they cannot be Muslims, Christian, Parsi, Jews by the religion. Okay, now come to the section 3 and most important section of this act, which has definition clause, in which we have clause A, which is custom and uses, and clause B, which is defined the district court. We can say the district court, and the third one, which define the term full blood and half blood. Okay, fourth one define the prescribed. Sorry, that says uterine blood, and the E clause define prescribed, and the F clause define the Sapandas relationship. Okay, and G define the degree of prohibited relationship. Okay, यहाँ तक समझ में आया. Section 4 deals with the overriding effect of the act. Next part deal with the Hindu marriages, in which we have section 5. Okay, section 5 deal with the conditions for the Hindu marriages. Okay, Hindu marriages, in which they first prescribe that the parties to the marriage must be Hindu, and the second one, at the time of marriage किसी का भी spouse present नहीं होना चाहिए उस टाइम पे. Present in the sense कि उनका जो spouse है वो होना ही नहीं चाहिए. अगर हुआ तो they will be held for the bigamy, which was earlier 494 IPC, but now this is 82 section of BNS. Okay. After this, they provide that at the time of marriages, neither party, कोई भी पार्टी जो है वो वैलिड कंसेंट देने में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से क्या इनकैपेबल नहीं होनी चाहिए. दूसरा ये है कि वो किसी भी तरह से इनकैपेबल नहीं होनी चाहिए वैलिड कंसेंट देने के लिए फॉर द या तो वो सफरिंग हो मेंटल डिसऑर्डर से, या फिर किसी भी तरह से अगर वो अनफिट है मैरिज के लिए, या फिर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रंस के लिए. सी क्लॉज जो है वो कहता है कि दे कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी. नेक्स्ट कंडीशन सेक्शन 5 में ही देता है एज लिमिट. ओके, एज लिमिट दिस मीन्स कि अगर ब्राइड ग्रूम है तो उसकी एज 21 होनी चाहिए, एंड इफ द ब्राइड इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर देन दे कैन नॉट मैरी. ओके, तो ब्राइड की एज जो है वो 18 ईयर और ब्राइड ग्रूम की 21 ईयर होनी चाहिए. नेक्स्ट वन, दे कैन नॉट बी अंडर द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, और लास्ट वन दैट इज दे आर नॉट subindash to each other unless their custom permits them. Okay, section 6 was omitted in the year 1978. section 7 deal with the ceremonies for the Hindu marriage act. ठीक, सेरेमनीज का मतलब ये है कि मैरिज जो है वो इनके कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज जो भी उनके पार्टीज के हैं, किसी भी एक पार्टीज के हों, उससे इनका मैरिज जो है वो सोलमनाइज्ड हो सकता है. और ये जो सच राइट्स और सेरेमनीज हैं, अगर ये सप्तपति को मानते हैं तो इनमें 7 स्टेप्स का होना जरूरी है, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का ज्वाइंटली. ओके, नेक्स्ट वन डील विद द सेक्शन 8, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिजेस. ओके, रजिस्ट्रेशन जो है वो सेक्शन 8 में प्रोवाइड है, और यहाँ पे ये कहा गया है कि ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिजेस, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी कि प्रोवाइड्स करेगी पार्टीज को कि वो क्या करें, अपने मैरिज को रजिस्टर कराएं. ओके, इसमें सीमा अश्वनी कुमार का ही केस है. नेक्स्ट सेक्शन डील विद द ये क्या नाम है, नेक्स्ट सेक्शन से पहले हम बताते हैं कि ये जो थर्ड पार्ट है वो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, इन विच सेक्शन 9 डील विद रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट. ओके, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट से आप सभी थोड़ा बहुत तो रूबरू होंगे, बट सेक्शन 9 डील विद रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, व्हिच सेज दैट व्हेन either party the husband or the wife
has without reasonable excuse withdrawn from the society of other, the aggrieved party may apply. इसमें जो भी aggrieved party होगी वो जो क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है by a petition to the district court for restitution of conjugal rights. Okay, on being satisfied of truth of the statement made in such petition and there is no legal ground why the application should not be granted, court जो है वो क्या कर देती है, degree of restitution जो restitution of conjugal right जो है वो grant कर देती है. Next section deal with the judicial separation. Okay, section 10, that is judicial separation. In this section, any party to the marriage may apply to the court for their separation of their marriage. Okay, on the ground of 13 clause 1 and 2. Next we discuss the nullity of marriages and divorce, in which section 11 deal with the void marriages. Void marriages means any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void and may on a petition presented by either party thereto against the other party be so declared by the degree of nullity if it contravenes any one of the condition specified in clause 1, 4, 5 of the section 5. आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे सेक्शन 5 का कौन कौन से क्लॉज हैं, which are clause 1, clause 4 and clause 5. Okay. Next, voidable marriage. Section 12 deal with the voidable marriages. Any marriage solemnized whether before, मतलब this section has the retrospective effect, but section 11 has the prospective effect. Okay. तो जो भी इस एक्ट के आने से पहले या फिर इस एक्ट के आने के बाद मैरिज हुए हैं उनको जो है क्या किया जा सकता है, डिग्री ऑफ नलिटी के थ्रू एनल किया जा सकता है, इन विच सम ग्राउंड्स आर देयर. ओके, इनमें क्लॉज 1 जो है ग्राउंड देता है, टोटल 4 ग्राउंड देते हैं कि जो उनका मैरिज है वो अभी तक दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओइंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट. ओके, नेक्स्ट वन ये है कि इन्होंने क्या कर दिया, 5 क्लॉज 2 को कंट्रावीन कर दिया. थर्ड ये है कि इनका जो कंसेंट था वो फ्रॉडुलेंटली लिया गया था. एंड द फोर्थ वन दैट इज कि रिस्पोंडेंट जो था एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट था. ठीक, और वो प्रेग्नेंट थी बट किसके थ्रू थी, अदर देन द पिटिशनर. इसमें सब क्लॉज 2 आता है जहाँ पे ये कहता है कि नो पिटिशन फॉर एनलिंग अ मैरिज नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग. जो भी फर्स्ट क्लॉज में दिया हुआ है कोई भी पिटिशन नहीं किया जा सकता है, तो वो ये है कि 1 ईयर का यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि 1 ईयर के अंदर ही पिटिशन किया जाएगा. जब भी जो है फ्रॉड कमिट हुआ था, जब वो डिस्कवर हुआ उसके 1 ईयर के अंदर हम क्या कर सकते हैं क्लेम. नेक्स्ट सेक्शन आता है 13. सेक्शन 13 डील विद द डिवोर्स विच हैज सो मेनी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स. इसमें भी this section is also retrospective in effect. In this we have total 7 ground. First 7 ground हैं जहाँ पे क्या किया जा सकता है, मैरिज को मतलब मैरिजेस में डिवोर्स क्लेम किया जा सकता है, इन विच मैरिज डिसॉल्व कर दिया जाएगा किसी भी पार्टी के थ्रू क्लेम करने पे. पहला कि इन्होंने वॉलंटरली क्या कर लिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया मैरिज सोलेमनाइज होने के बाद अपने स्पाउस के अलावा, मतलब एडल्ट्री कॉज करी. नेक्स्ट वन क्रुअल्टी कॉज किया, उसके बाद इन्होंने अपने स्पाउस को डिजर्ट कर दिया 2 ईयर्स के लिए. इसके बाद वो सीज टू बी हिंदू हो गया या फिर अपना मतलब रिलीजन कन्वर्ट कर लिया. नेक्स्ट है कि इन अनसाउंड माइंड है. फोर्थ वन इज डिलीटेड एंड द फिफ्थ वन दैट इज सफरिंग फॉर कम्युनिकेबल डिजीज एंड सिक्स वन दैट इज रिनाउंस कर देता है वर्ल्ड को. एंड द लास्ट 7th दैट इज कि वो 7 साल से देखा नहीं गया है या फिर सुना नहीं गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिवोर्स का ये सारे ग्राउंड हो सकते हैं. यहाँ पे एक क्लॉज 1A है कि either party to a marriage whether solemnized before or after the commencement of this act may also present a petition for dissolution of the marriage by a decree of divorce on the ground. 2 grounds दिए हुए हैं जहाँ पे किया जा सकता है that there has been no resumption of cohabitation as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upward after passing of judicial separation. जब से judicial separation हुआ है उसके बाद से 1 साल के अंदर उनमें कोई cohabitation नहीं है, तो डिवोर्स क्लेम किया जा सकता है. that there has been no restitution of conjugal rights as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upward after the passing of a decree for restitution of conjugal rights in proceeding to विच देवर पार्टीज. ओके, सेकेंड क्लॉज जो है वो ये कहता है कि अ वाइफ में ऑल्सो प्रेजेंट अ पिटिशन. यहाँ पे वाइफ के पास कुछ एक्स्ट्रा ग्राउंड्स हैं जहाँ पे वो क्या कर सकती है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को क्लेम कर सकती है फॉर द डिक्री ऑफ डिवोर्स. ओके, जिसमें फर्स्ट वन ये है कि जिस टाइम पे मतलब इस एक्ट के कमेंसमेंट के टाइम पे द हस्बैंड हैड मैरिड अगेन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एंड दैट एनी अदर वाइफ ऑफ द हस्बैंड मैरिड बिफोर सच कमेंसमेंट वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ solemnization of the marriage of the petition, मतलब कि बाई में. एंड द सेकंड वन कि इसका जो हस्बैंड है वो क्या है, गिल्टी ऑफ रेप है, सोडोमी है, बेस्टियलिटी है. एंड थर्ड की दैट इन अ सूट अंडर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस है. ओके, तो डिवोर्स यहाँ खत्म होता है. नेक्स्ट है सेक्शन 13A दैट इज अल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स. तो यहाँ पे हम जानेंगे कि अल्टरनेट रिलीफ क्या हो. यहाँ पे ये है कि ये जुडिशियल सेपरेशन दे सकता है. नेक्स्ट है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. यहाँ पे पार्टीज जो हैं वो कूलिंग पीरियड का जो टाइम दिया होता है 6 मंथ का, उतने के बीच में इसका लंबा प्रोसीजर है, बट यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू भी पार्टीज जो हैं वो अपने मैरिज को डिसॉल्व करा सकती हैं. नेक्स्ट है सेक्शन 14 नो पिटिशन फॉर द डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज. ये एक बार करता है, मतलब यहाँ पे राइट तो है कि आप डिवोर्स क्लेम कर सकते हो, बट आप 1 ईयर के बिफोर, आपका मैरिज जो है जब से कमेंस हुआ है उसके बाद से 1 ईयर के अंदर आप डिवोर्स पिटिशन नहीं लगा सकते. इसमें एक्सेप्शनल केसेस भी हैं कुछ.
सेक्शन 14 डील विद द डिवोर्स पर्सन व्हेन मैरी अगेन। ओके, यहाँ पे ये दिया गया है कि जो डिवोर्स पर्सन है वो मैरी कर सकता है जहाँ पे नो राइट टू अपील अगेंस्ट द डिक्री हो, या फिर जो अपील का टाइम है वो एक्सपायर हो गया हो जब अपील प्रेजेंट करनी थी, या फिर जो अपील जो है वो प्रेजेंट की गई बट वो डिसमिस हो गई, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, लॉफुली जो पार्टी है वो क्या कर सकती है, दोबारा शादी कर सकती है। ओके, सेक्शन 16 डील विद द लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। यहाँ पे ये है कि ये दोनों ही सिचुएशन में क्या किया जाएगा, डीम टू बी अ लेजिटिमेट चाइल्ड होगा। ओके, वॉइड मैरिज के सिचुएशन में क्या है कि जो लेजिटिमेट एज ऑफ वैलिड मैरिज होगा, और जबकि डिग्री ऑफ नलिटी के सीन में जो है वो हम देखेंगे कि इसको हम लेजिटिमेट डीम करेंगे। ओके, सेक्शन 17 डील विद द पनिशमेंट फॉर द बाइगेमी। अर्लियर दिस वाज डील विद द सेक्शन 494 and 495 IPC, under which punishment is provided, but now it is section 82 of BNS. Okay, next section deal with सेक्शन 18 पनिशमेंट फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशन फॉर द हिंदू मैरिजेस। ओके, इसमें अलग अलग कंट्रावेंशन दी हुई हैं जिसमें पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइड की गई है। इन विच अगर 5 क्लॉज 3 को वो करता है, कंट्रावीन करता है, तो इस सिचुएशन में इसको क्या किया जाएगा, टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा 2 ईयर का, और 1 लाख तक की वो मिलेगी, फाइन दे सकते हैं। और अगर ये 4 और 5 को कंट्रावीन करता है, 5 के सेक्शन 5 के 4 क्लॉज 4 और 5 को, तो इसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, और वो भी 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट, या फिर उसको फाइन मिलेगी 1000 रुपीज़ की। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 तरह की फाइन है, दैट इज रिगरस इम्प्रिजनमेंट है कितने का, अगर 5 क्लॉज 3 को कंट्रावीन करता है तो कितना फाइन लग रहा है इसके ऊपर, टोटल 2 ईयर एंड 1 लाख। ठीक, जबकि जब ये 5 क्लॉज 4 एंड या फिर 5 को कर रहा है तो इसको मिल रहा है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और वो भी 1 मंथ का, और 1000 रुपीज़ भी। ठीक, 1000 रुपीज़ ओनली। ओके, और नेक्स्ट come to the next one, that is jurisdiction and procedure. Okay, section 19 deal with the court to which the petition shall be presented. तो यहाँ आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि that is district court. Okay, and the third one, next one, that is section 20 content and verification of the petition. यहाँ पे कंटेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ द पिटिशन जो है वो किसके थ्रू होगा, जो भी या तो पिटिशनर कर दे, या फिर कोई भी पर्टिकुलर जो कंपिटेंट पर्सन है वो क्या कर सकता है, वेरिफिकेशन कर सकता है प्लेंट में। ओके, बाई लॉज ही वेरिफिकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, दैट इज सेक्शन 21 अप्लीकेशन ऑफ द एक्ट नंबर 5 ऑफ द 1908। मतलब ये है कि इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी की सारी प्रोविजन जो भी सीपीसी में है वो सब यहाँ पे लगेगा। ओके, जैसा कि हाई कोर्ट रूल्स करता है। नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज पावर टू ट्रांसफर द पिटिशन इन सर्टेन केसेस। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। 21B जो है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ द पिटिशन अंडर द एक्ट है। नेक्स्ट वन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है, 21C ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है। इसमें ये बात कही गई है that no document shall be inadmissible in evidence in any proceeding at trial of petition under this act on the ground that it is not duly stamped or registered. Okay, section 22 जो है proceeding to be in camera and may not be printed or published. Okay, यहाँ पे ये कहा गया है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, और दूसरा ये है कि यहाँ पे इन्हें हम प्रिंट नहीं कर सकते और पब्लिश नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिक्री इन द प्रोसीडिंग्स 23, सेक्शन 23 डिक्री इन द प्रोसीडिंग्स है। सेक्शन 23A जो है वो क्या करता है, बात करता है, इसमें यह है कि सेक्शन 23A जो है रिलीफ फॉर द रिस्पोंडेंट इन डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स है। सेक्शन 24 विच इज इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे ये कहता है कि वेर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट आइदर द वाइफ और द हस्बैंड एज द केस मे बी हैज़ नो इंडिपेंडेंट इनकम। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हैज़ नो इंडिपेंडेंट इनकम सफिशिएंट फॉर हर और हिज सपोर्ट एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, इट मे ऑन एप्लीकेशन ऑफ द वाइफ और द हस्बैंड order the respondent to pay to the petitioner the expenses of proceedings and monthly during the proceeding such sum as having regard to the petitioner's own income and the income of the respondent it may seem to the court to be reasonable। यहाँ पे डिस्क्रिशनरी है कि वो जो भी उसे सही लगता है वो ग्रांट कर देगा। यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया हुआ है जिसमें ये कहा जाता है, प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग एंड सच मंथली सम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग shall as far as possible be disposed of within 60 days from the date of service of notice on the वाइफ और हस्बैंड एज द केस में भी। ये 60 डेज आप याद रखेंगे। यहाँ पे 60 डेज की बात की गई है यहाँ पे डिस्पोजल के लिए। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस की बात करता है, सेक्शन 25, जो कि सेक्शन 25 जो है वो ये कहता है कि कोई भी जो कोर्ट है जहाँ पे उसके पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, परमानेंट एलिमनी दे सकता है अगर उससे क्लेम किया गया है तो।
ये एलिमनी जो है ये बार्ड हो सकती है इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पार्टी इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन हैज रीमैरिड और इफ सच पार्टी इज द वाइफ दैट सी हैज नॉट रिमेन्ड chaste और if such party is the husband that he has had sexual intercourse with any women outside wedlock, it may at the instance of the other party vary, modify or rescind any such order in such a manner as the court may deem just. Okay, next section that is custody of the children की बात करता है। यहाँ पे ये है कि कोर्ट जो है टाइम टू टाइम पास कर सकता है इंटरिम ऑर्डर्स रिलेटिंग टू दिस मतलब कस्टडी मेंटेनेंस एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन कंसिस्टेंटली। ठीक, टाइम टू टाइम वेरी करता है ये ऑर्डर। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो इसमें चल रही है इस एक्ट में, कोर्ट जो है वो प्रोविजन बना सकता है कि जो भी उसे जस्ट लगे या प्रॉपर लगे विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड एट और अबाउट द टाइम ऑफ द मैरिज विच मे बिलोंग टू जॉइंटली टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, नेक्स्ट इज अपील की बात करता है फ्रॉम द डिक्री एंड ऑर्डर। यहाँ पे ये कही गई है कि सब्जेक्ट टू अपील तो है बट 90 डेज़ का यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है कि 90 डेज़ के अंदर जो है अपील जो है प्रिफर्ड की जा सकती है। नेक्स्ट सेक्शन दैट इज 28A इन्फोर्समेंट ऑफ द डिक्री एंड ऑर्डर की बात करता है। ये ऑल डिक्री एंड ऑर्डर जो हैं जो भी कोर्ट के थ्रू दिए जा रहे हैं इस एक्ट के अंतर्गत शैल बी इन्फोर्स्ड इन लाइक मैनर एज अ डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मेड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड। ओके, सेक्शन 29 जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वो डील करता है सेविंग एंड रिपील्स की। सेक्शन 29 जो है वो डील करता है सेविंग्स की। इसके बाद 30 रिपील कर चुका है in the year 1960. Okay, thank you for this.